بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا، عمرہ، حکمہ اور وزراء کو بلایا ہوا تھا. جب امام کو بلایا اور امام کو اس نے تخت دیا، تخت دینے کے بعد اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی بیعت کریں. جب اس نے کہا میں چاہتا ہوں لوگ آپ کی بیعت کریں، تو امام نے کہا ہم بیعت کروانے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا فرزند رسول یہ لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے ہیں. امام نے اپنے ہاتھ کو یوں اٹھا لیا، یوں اٹھا کے امام بیٹھ گئے. کافی دیر خاموش رہنے کے بعد امام رشید کی طرف سے سوال ہوا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ بیعت کروائیں. تو امام نے کہا ہم بیعت کروا رہے ہیں. اس نے کہا فرزند رسول ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے. آنے والا اس نے کہا ایسے بیعت کرانے میں کیا ہے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کے سامنے یوں نہیں کرتی. واہ 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 واہ. اس نے کہا ایسے بھی ہاتھ کرو کرو، ہونی تو بیعت ہی ہے. امام نے فوراً قرآن سے نس دی. امام نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں. نعرے حیدری. میرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اور غدیر میں رسول نے علی کی بیعت ایسے نہیں کروائی تھی، ایسے حجت جب بھی بیعت کرواتی ہے ایسے کرواتی ہے، ایسے ہوتی ہے. اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. امام کی بیعت ہونی شروع ہوئی، لوگ آنے شروع ہو گئے. اور جب حجت کی ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے تو امام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی سے بیعت کو شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کی جاتی ہوتے. ایک نصرانی نوجوان آیا اور اس نے یہاں سے بیعت شروع کی. امام نے مسکرا کے اب پہلی بیعت ہوئی. اسے جتنی پہلی بیعت ہوئی وہ ساری فسخ ہو گئی، کیونکہ امت بیعت کا طریقہ ہی بھول گئی تھی. کیونکہ غدیر کے ساتھ متمسک رہتے تو شاید بیعت کا طریقہ بھی جانتے. امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی ہو گئی، امام حاکم بن گئے. امام جب حاکم بنے، امام رشید نے کہا کہ مولا آپ چاہیں تو اب آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی احکامات جاری کر سکتے. امام نے بحیثیت حاکم جو پہلا سرکاری حکم نامہ ایگزیکٹو آرڈر جو امام نے پاس کیا وہ کون سا تھا؟ امام نے فرمایا پوری دنیا میں مسلمان روم کا سکہ خریدتے، اور روم عیسائیوں کا ملک تھا. جیسے آج کے دور میں امریکہ یا یو ایس اے کی حیثیت ہے، ایسے اس دور میں روم کی حیثیت ہے. روم امیر ترین ملک تھا، پوری دنیا میں روم کا سکہ خریدا جاتا تھا. امام نے فرمایا کہ روم کا سکہ ہے عیسائیوں کا، اس کے اوپر عیسائیوں کے مذہب کی تبلیغ ہے. انہوں نے صلیب کا نشان بنایا ہوا ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اپنے سکے کے ذریعے کرتے. امام نے فرمایا آج کے بعد کوئی مسلمان ملک روم کا سکہ نہیں خریدے. یہ کہنے کو ایک عام حکم تھا، لیکن حکومت پریشان ہو گئی کہ ایک پورے اسلامی ممالک سے ایک امیر ملک کا سکہ اٹھا لیا جائے گا تو پھر وہاں کیا جائے. امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں، اسلامی ممالک کا اپنا سکہ ہوگا. اس کا مولا یہ حکم بڑا سخت ہے، اس میں عمل درآمد ہوگا. امام نے فرمایا ہوگا. فوراً ٹکسال سے کہا گیا کہ سکہ ڈھالا جائے. ٹکسال نے سکہ ڈھالا، امام کے ہاتھ میں سکہ دیا. امام رشید نے کہا اگر آپ نے روم کا سکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ اس میں عیسائیت کی تبلیغ ہے تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں، اس سکے پہ ایک طرف خانہ کعبہ کی تصویر بناتے ہیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ لکھ دیتے ہیں تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو. امام نے فرمایا نہ وہ سکہ میں نے اپنی مرضی سے بند کیا ہے، نہ یہ سکہ میری مرضی سے بنے گا. بند کروانے میں بھی توحید کی مرضی، نیا جاری کرنے میں بھی توحید کی مرضی. سکہ لا کے میرے سامنے رکھا جائے. کتاب میں اس بات پہ شاہد ہے کہ امام کے سامنے سکہ رکھا گیا. امام نے اپنی انگشتری مبارک کے ساتھ سکے پہ مہر لگائی تو سکے پہ لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. امام رضا کے دور میں جو بندے آج سوال کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ کب سے شروع ہوا، امام رضا کی انگشتری مبارک سے جو سکہ نکلا اس سکے پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. سکہ پورے اسلامی ممالک میں پھیل گیا. تمام اسلامی ممالک نے اس سکے کو خرید لیا. اور دشمن دشمنی میں خریدتا تھا، دوست محبت میں خریدتا. واہ. جس کے دل میں دشمنی علی کی تھی اس کے لیے مشکل بن گئی. مشکل کیسے بن گئی؟ اردو خطابت کا لطیف جملہ کہنے لگا، دل میں بغض علی اور جیب میں ولایت علی. دشمن خریدتا نہیں تھا، دشمن خریدتا نہیں تھا اور نوکر بیچتا نہیں تھا. اب جو امام کے محبت کرنے والے تھے انہوں نے اس سکے کو محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا، اور صرف رکھا ہی نہیں، انہیں پتا تھا کہ کسی بھی دور میں یہ سکہ بند کر دیا جائے گا. انہوں نے سکے کو چھپا لیا. جب سکے کو چھپا لیا اس کے بعد یہ جب بھی سفر کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس دور میں بیوی شوہر سے مدد چھپاتی تھی، اولاد ماں باپ سے مدد چھپاتی تھی. جو مومنین نے سکہ اپنے گھروں میں چھپایا ہوا تھا جب سفر کے لیے جاتے تو اس سکے کو کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ دیتے. اگر کوئی پوچھا یہ کیا ہے تو وہ کہتے یہ ہمارا امام زامن ہے. واہ. امام زامن کی ابتدا جو ہے وہ 8ویں شہنشاہ کے سکے سے. اب امام کے دور میں ایک اگلی دلیل اور دے دو. امام کا دور یکدس ہے اور امام حاکم بن کے حکم نافذ کر رہے ہیں.
एक ऐसा वक्त आया कि इमाम मामून रशीद ने कहा कि मैं तमाम गवर्नर्स को बुलवाता हूं, एक बहुत बड़ी मीटिंग का एहतमाम किया ताकि तमाम शहरों में खबर पहुंच जाए कि मैंने इमाम अली इब्न मूसा रजा को अपना वली हैद बना लिया। तमाम गवर्नर्स बुला लिए गए। अब ये लाजमी बात है, ये अजम के गवर्नर थे और ईरानी शक्ल शुबाहत के एतबार से खुश शक्ल होते। इसने अपने गवर्नर्स को बुलाया गया, गोरे गवर्नर्स यूं बिठा दिए गए। किताबें कहती हैं कि 202 कुर्सी लगाई गई, 202 हिजरी भी थी, उस एतबार से भी लगवाई गई। 100 कुर्सी इधर लगी, 100 इधर लगी, एक इधर एक उधर, एक इमाम की एक मामून की, 100 गवर्नर इधर 100 गवर्नर इधर। और 200 जो गवर्नर्स बैठे थे उनके पीछे पीछे एक एक काला गुलाम खड़ा कर दिया गया जो उनको हवा देने के लिए खड़ा। अब आप अगर आपके ज़हन में तस्वीर बन गई है कि 100 गवर्नर्स बैठा है, उसके पीछे 100 गुलाम काला खड़ा है हबशी, 100 इधर बैठा है, उसके पीछे काला हबशी गुलाम खड़ा। दस्तरखान लग गया और बहुत बेहतरीन नेमतें सजा दी गई। मामून रशीद सामने कुर्सी पे, जब बिल्कुल दस्तरखान लग गया तो उसने इमाम से कहा कि खाना शुरू करें। अब गवर्नर चाहते थे कि पहले मामून शुरू करे, मामून चाहता था कि पहले इमाम शुरू करे, और इमाम अपना हाथ रोक के बैठा। दूसरी दफा फिर मामून को कहना पड़ा कि मौला खाना शुरू कर। अब ये है हमारा इमाम। इमाम ने सर उठाया, वो जो हबशी गुलाम खड़े थे उनकी तरफ देखा। देखने के बाद इमाम ने फरमाया ये खड़े खड़े खाएंगे। वाह 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 वाह। मामून रशीद ने कहा कि मौला मेहमान ये हैं। तो मौला ने फरमाया ये कौन है? अब जुमला सुनना कितना बेहतरीन जुमला आने लगा। उसने कहा मौला ये गुलाम है। जब उसने कहा ये गुलाम है, इमाम के तेवर बदले। इमाम कहा तू आजाद है? तू किसी का गुलाम नहीं है, ये गुलाम है तो तू कौन है? इमाम के तेवर बदले हुए थे। मामून खौफजदा हो गया, गवर्नर परेशान हो गए। मामून ने कहा तो फिर होकर। इमाम फरमाया जब तक ये नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। इतना कहना था, एक एक गोरे के साथ एक एक हबशी गुलाम की कुर्सी लगाएंगे। बस यहां मैं जुमला तब्दील करके कहूंगा, गुलाम खाते रहे और अमीर अपने लिबास को समेटते रहे। लेकिन फर्क क्या पड़ा, जब गोरे गवर्नर नाराज होकर मामून से जा रहे थे, काले हबशी इमाम के कदमों पे आके कह रहे थे अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। मामून का दौर है, इमाम हाकिम बने हुए, बस आखिरी जुमला यूं बैठे हुए मेरे वहां पूरी रात गुजर जाए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के। इतने किस्से हैं इमाम के, इतने फरामीन है इमाम के, इतनी वाज़ेह कहानियां हैं इमाम की कि पूरी रात बीत सकती है इमाम का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। मेरे 8वें शहंशाह बैठे हुए थे, ये यकदम दरबार में खुशबू आ गई। इतनी तेज खुशबू आई कि लोगों के सर खुशबू की वजह से चका गए, परेशान हो गई, ये खुशबू कहां से आ गई? और खुशबू बता रही थी कि ये खुशबू पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। सब हैरत ज़दा थे देखने के लिए खुशबू किसके पास से आ रही। मामून रशीद ने भी सर उठा के यूं पीछे की तरफ देखने लगे। या एक शख्स पीछे खड़ा अपने हाथ को हिला रहा था। मामून रशीद ने सिपाहियों से पूछा ये कौन है? वो मामून रशीद के करीब आया, उसने कहा जिसको तू ढूंढ रहा है वो मैं। मतलब उसने कहा जो खुशबू तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास से आ रही। इसे कहा बता किस अतर की है, किस बूटी की है? उसने कहा ना कोई बूटी ना कोई अतर। क्या है? उसे अपनी जेब से एक डब्बी निकाली, डब्बी को खोला, उसने कहा मेरे पास रसूल अकरम के सर मुबारक के बाल, मुंह मुबारक के रसूल के सर के बाल तेरे पास कहां से आए? उसने कहा मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक मिस्र से था, मिस्र से हमारा पूरा कबीला मक्का गया था, वहां से मदीना पहुंचा, रसूल के हाथ में इस्लाम कबूल किया, रसूल ने उनको बतौर तबरुक अपने सर मुबारक के बाल दिए थे, नस्ल दर नस्ल चलते 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 मेरे पास आ गए। अब मेरे दरबार में क्यों लेके आए? उसने कहा गुर्बत बड़ी आ गई, इनको फरोख्त करना चाहते। कितने बाल हैं? उसने कहा 7। कीमत? उसने कहा एक बाल 100 दिनार, 7 बाल 700 दिनार। मामून रशीद ने कहा सौदा महंगा नहीं, कर जरूर लूंगा, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये बाल रसूल के? हमने तो रसूल को देखा नहीं, हमने रसूल के साथ जिंदगी गुजारी नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बाल जो है वो रसाल दिमाग के? इतना कहना था या मामून रशीद परेशान था? आखिरी जुमले के अंदर मामून परेशान था, कैसे पता चलेगा कि ये बाल रसूल? मामून रशीद ने सिपाही से कहा जा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा को बुला के ला। दरूद सारे मिलके बुला।
मोहम्मद। इमाम रशीद ने कहा कि जाओ इमाम अली इब्न मूसा रजा को बुलाया जाए। जुमला सुनिएगा, जब इमाम अली इब्न मूसा रजा को बुलाया तो हैरत की इंतहा न रही। जो बाल से खुशबू आ रही थी वही दरबार के दरवाजे से आ रही थी। इमाम चलते चलते मामून के करीब आए। मामून रशीद ने कहा, ऐ मुश्किल कुशा के बेटे, मुश्किल आ गए। क्यों? ये शख्स दावा करता है कि इसके पास रसूल मुबारक के सरे अक़दस के बाल, तो आप पता कर सकते हैं कि ये बाल रसूल के हैं या नहीं? इमाम में अभी पता चल जाएगा, आग रोशन करो। उन्होंने तश्त में आग रखी, इमाम के करीब गई। इमाम ने डब्बी को खोला, इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 अलहदा किए। 3 अलहदा करने के बाद इमाम में, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। जिसने जिस अंदाज से भी सुना, ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल मेरे नाना के हैं। मामून रशीद ने गौर से देखे, कहा, मौला वैसे समझने की बात है, दिखने में एक जैसे हैं, रंगत एक जैसी है, बालों का कद एक जैसा है, पता कैसे चला? इमाम ने कहा, आग रोशन करो। आग रोशन की। इमाम ने 3 बाल डाले, तीनों के तीनों जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। 4 बालों का आग में जाना था, आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई। मामून रशीद चेहरे पे हैरत ला के कहने लगा, अच्छा तो आज पता चला है नबी के बाल पे आग का असर नहीं होता। इमाम का हाकम बन के बैठा है, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया तो नबी की आल कैसे आ? हैदर 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 यारी। इतने लंबे किस्से, इतनी लंबी कहानियां, रात बीत जाए, इमाम का जिक्र खत्म। अमीरों का अमीर है, आज भी मशहद जाके देखो, नजफ जाओ, करबला जाओ, बाबुल हवाए जब्बास है, करम का शहनशाह हुसैन है, मरकज जूदो सखा नजफ है, खताओं की माफी काज़मैन से मिलती है। लेकिन जो ही मशहद इमाम के शहर में जाओ, क्या कहने उस शहनशाह के रोजे के। 8 शहर, वसी और अरी शहर, सोने के दरवाजे, चांदी के दरवाजे, सुनहरी गुंबद, नौकरों की लंबी लाइनें, खाने के वसी इंतजाम। जाहिर जब जाता है तो एक दफा सहन से गुजरते हुए सीना फख्र से चौड़ा हो। इतना अमीर हमारा इमाम, अल्लाह की कायनात में किसी के पास ऐसा इमाम नहीं। यूं सीना फख्र से चौड़ा करके जब उस वसी और ई सहन से गुजरता हुआ, इमाम के औराक बरामदों से गुजरता हुआ, जब इमाम की जर्री पे जाता है तो जाहिर की चीख निकल जाती है। सामने लिखा हुआ है, अस्सलाम अलैका या गरीबुल गुरबा। इतना अमीर है तो फिर गरीब क्यों? अमीर बड़ा था लेकिन वतन में कब्र न बने, क्योंकि जनाजा इमाम बिल्कुल करीब, देर भी ना हो, ताखीर भी ना हो। आज सिर्फ रसूल की बेटी नहीं, आज इमाम मूसा काज़िम की सारी बेटियां रोने के लिए आई। ये ढेर सारी बहनों का भाई था। ये नहीं है कि वतन से एक चली है तो बहन एक थी, बहन ज्यादा थी, वतन से एक चली। अल्लाह किसी बहन से ऐसे भाई को जुदा न करे। अज़ादारी इमाम हुसैन थोड़े हो या ज्यादा हो, आज में शहनशाह ने अज़ादारी के तरीके बताए। इतना प्यार करते थे इमाम ने रजा अलैहिस्सलाम अज़ादारी से कि इमाम अपने घर में मजलिस का एहतमाम करवाते। जब एहतमाम करवा लेते तो इमाम खुद दरिया बिछाने लग जाते। नौकर दौड़ के आते, इमाम के हाथ से पकड़ते, मौला हम नौकर हाजिर हैं। फरमाया नहीं, मुझे इंतजाम करने दो, यहाँ मेरे जद के ज़दारों में आना। और इमाम कलीन बिछाने के बाद उस जगह को चूमते। एक नौकर ने कहा, मौला आप कलीन क्यों चूमते? फरमाया ये कलीन नहीं, यहाँ पे मेरी दादी ज़हरा, यहाँ पे नबियों की दस्तारें उतर जाती हैं, यहाँ मलाइका अपने परवश करते। मुहर्रम का चांद करीब था, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर से कहा, देबले खुदाई को तो बुला। देबले खुदाई उस दौर का मरसिया खां था, जाकिर शबीर था। इस जाकिर को ये एजाज हासिल है कि इसे इमाम रज़ा ने अपना जुबा मुबारक दिया किया। देबले खुदाई को कहा, देबल को बुलवा के लाओ। नौकर गया, देबल के घर जाके कहा, तुझे इमाम रज़ा बुला रहे। देबल इमाम की सदा पे आया। अगले जुमले किताब के देबल दरवाजे पे था, या इमाम कलीन से उठे, देबल की तरफ तेज कदमों से दौड़े।
देबल कहता मैंने इमाम को इतना तेज चलते कभी देखा नहीं था, इतना तेज चलते देखा तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। देबल कहता हूं वहीं पे रुक गया। इमाम ने आके मेरे गले में बाहें डाल के कहा मेरी दादी का मददगार तो मेरा सलाम। ये है हुसैन के जाकर का एहतराम। ऐ मेरी दादी ज़हरा के मददगार तो जो मेरा सलाम। गले में बाहें डाली, इमाम ने देबल की पेशानी और दाढ़ी को चूमा। देबल मेरे जद हुसैन के रोने के दिन है, तूने मेरे जद हुसैन पे कोई मरसिया लिखा है? देबल ने कहा मौला रात ही मैंने एक मरसिया लिखा। इमाम ने कहा सुना। देबल मिंबर के करीब खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम सामने जमीन में बैठे। इमाम ने कहा देबल ये क्या कर रहा है? मिंबर पे बैठ के सुना। देबल रो कर मौला अगर मैं मिंबर पे बैठूंगा तो आप कहां बैठे? फिर मैं तेरे सामने मट्टी पे बैठू। देबल रो कहता आप जमीन पे बैठे, मैं मट्टी पे, मैं मिंबर पे बैठू। इमाम ने कहा तू जाकर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं अज़ादार शबीर बन के जमीन पे बैठ। देबल कहता हुक्म इमाम के तहत देबल मिंबर पे बैठ गया। देबल ने मरसिया पढ़ा। वो मरसिया आज भी अरब में मशहूर है। इस मरसिया को उर्दू में तर्जमा करके मोहसिन नकवी ने लिखा था और वो भी मरसिया बहुत मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में ये तखय्युल देबल खुजाई का था जो हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने इस मरसिये को उर्दू में किया था अरबी से। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप। देबल खुदाई मिंबर पे आया। देबल का सैयदा तेरा सलाम, तेरे चमन की कलियां सहरा में बिखर। मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसके जनाजे को तीरों से सजाया गया। मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा। मेरा सलाम तेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को जिसे कैद करके बाजारों में फिराया गया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकिर को जिसे कम सनी में कैद किया। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादिक को जिसे गुर्बत की सजा दी। बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काज़म को जिसे 14 साल कैद में रखा। यहाँ तक मरसिया पढ़ने के बाद देबल मिंबर छोड़ने लगा। अब जब बंदा रोने गया जनाजा था। जब देबल ये जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा, इमाम रज़ा गिरेबान चाह करके मैं देबल अभी मरसिया देबल एक शेर और पढ़ दे। देबल कहता मौला मेरा मरसिया तमाम हो गया। इमाम ने अपने जेब से कागज का टुकड़ा निकाल दिया। देबल ने कागज का टुकड़ा निकाला तो उसमें लिखा हुआ था बीबी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत में दफन हो गया। देबल रोता हुआ नीचे मौला मुझे नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने कहा मेरे गले में बांधे ये तेरा गरीब इमाम है। देबल दोबारा मिंबर पे आया। देबल अभी शेर पढ़ रहा था कि मस्तूरात की तरफ से एक जनात उठी, एक सर वाली सहीफा। देबल दोबारा शेर न पढ़ना। कोई बहन बेहोश हो रही है। फातिमा रो रो के कह रही है मेरी जिंदगी में ये मेरा वो जिसे वतन से दूर किया गया, जिसकी बहन मिलने के लिए पैसे दिए। मैं पूरी तहकीक के साथ कुंभ वाली बीवी को भी जहर आले मोहम्मद में सिर्फ इनके बेटों को जहर नहीं मिली, बेटियों को भी जहर। आखिरी वक्त का बस बहुत लंबी शहादत है इमाम की, बस में आखिरी जुमले पढ़ने लगे। इमाम रज़ा को बुलाया गया। इमाम के 2 नौकर जैसे भूसरो कंबर रहते थे अमीरुल मोमिनीन के साथ, ऐसे अबा सल्लत और ख्वाजा मुराद ये दोनों इमाम के साथ रहते थे। आखिरी वक्त में अबा सल्लत इमाम के साथ। इमाम ने फरमाया कि मुझे दरबार में जाना है, मामून ने बुलाया। अबा सल्लत इमाम के साथ चला। रास्ते में इमाम ने फरमाया अबा सल्लत मैं तुझे चंद वसीयतें करना चाहता हूं। बोला कौन सी? फरमाया अबा सल्लत जिसने मुझे दरबार में बुलाया ये मुझे जहर देने लगा। जहर का नाम होना था अबा सल्लत की चीख निकली। इमाम ने फरमाया खामोश, हम मौत के राजों से वाकिफ होते हैं लेकिन हम अल्लाह के अमर को कभी भी अपने से दूर नहीं रखना चाहते। ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया मेरी वसीयत है। मौला कौन सी? इमाम ने एक जगह दिखाई। फरमाया यहाँ मेरा कब्र का निशान बना, यहाँ से मट्टी को हटाना, नीचे एक तख्त निकलेगा, उस पत्थर की तख्ती को हटाना, नीचे से पानी बरामद होगा, उंगलियां रख के इस इस्म को पढ़ना, वो पानी खुश्क हो जाएगा, यहाँ मेरा तवीज़ कब्र बनाना। ये कहने के बाद इमाम ने अगला जुमला कहा और जुमले में इमाम की आंखों से जा रही थी।
इमाम वसल्लम से मेरी कब्र बना ले, मेरी कब्र बनाने के बाद एक एहसान करना, अपने घर से अपनी बेटियों को ला, थोड़ी देर मेरी कब्र से बिठा के, आज इसे लगा है तो हम इसलिए किया है कि इस इमाम को प्रदेश में रोया कोई नहीं। आज हम सारे रोने के लिए जनाजे के सामने कि मौला अगर हम खुरासान में, मौला तेरा जनाजा गुरबत में ना हो, मौला आज हम प्रदेश में जनाजे को रोने के लिए। इमाम ने फरमाया अच्छा मसला, मेरा जनाजे का एहतमाम करना, लेकिन मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा जवाद आके पढ़ाए। ये कह के इमाम ने कहा कि अगर मैं मामूर के दरबार में जाऊं और वापस पलटूं, अगर मेरे सर पे अमामा हो तो समझना कि जहर नहीं मिली, अगर अमामा खोल के चादर बन के मेरे सर पे और मेरी चादर मेरी आंखों के सामने हो तो समझ लेना मुझे जहर मिल गई। फिर मुझ पे सवाल न करना, मुझे मेरे घर छोड़ा। इधर से इमाम दरबार में दाखिल हुए, अब वसल्लम दरवाजे बैठ और दरवाजे बैठ गए, या फातिमा ज़हरा मदद कर, बीबी तेरा बेटा मुश्किल में, बीबी तेरे बेटे को जहर मिल, बीबी हम प्रदेश में गरीब हो गए। अब वसल्लम कहता मैं चीखता रहा, थोड़ी देर बाद इमाम का कदम बाहर आया। अब वसल्लम कहता मेरी जिंदगी में वक्त आया, मैंने सर उठा के देखा, इमाम के सर मुबारक पे चादर थी, इमाम गर्दन को झुकाए हुए चलते जा रहे थे। अब वसल्लम कहता मुझे रजा की गुरबत की कसम है, मैंने इमाम रजा को शहादत में देखा है, रजा जहां से पांव उठाता था नीचे से जमीन लहू के साथ इमाम रजा के पांव के तलवे इमाम की आंखों से लहू जारी, इतनी शदीद जहर दी गई, आंखों से लहू, पांव के तलवे फट गए। अब वसल्लम कहता मैंने इमाम को इस हालत में देखा, नफीस इमाम, इस नफीस इमाम को इस हालत में देखा। अब वसल्लम कहता मैंने इमाम को घर पहुंचा के वसल्लम कहता मैंने इमाम को बिस्तर में बिठाया, इमाम की वाली हर समा को बुला के ला, जब कहना हर समा को बुला के ला। अब वसल्लम कहता मैं जो ही इमाम के घर से बाहर निकला, खौफनाक आंधी आई, और ये इमाम की शहादत की इलामत होती है। जब इमाम शहीद हो रहा हो तो कायनात में तब्दीली आती है, आसमान का रंग सुर्ख हो जाता है। अब वसल्लम कहता जो ही मैं इमाम के घर से बाहर निकला, आसमान पे सुर्खी आ गई, इतनी तेज आंधी आई, दरवाजे के साथ दरवाजा लग रहा था। अब वसल्लम कहता मुझे अपना हाथ ही दिखाई नहीं दे रहा था, इतना खौफ आ रहा था, हवा में इतना जोर था, इतना शोर था। अब वसल्लम कहता मैं सहम गया, मैं कभी इस दीवार से लग रहा था, कभी इस दीवार से लग रहा। अब वसल्लम कहता मैं हर समा के घर पहुंचा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर समा मुसल्ला इबादत में बैठा था, मैंने कहा हर समा मुसल्ला छोड़, हर समा कहता क्या बता रही है, ये लम्हात बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है, मेरे इमाम को खैर है। मैंने अब वसल्लम कहता हर समा को बताया हमारे इमाम को जहर मिल गई है। अब वसल्लम कहता हम दोनों खुरासान की गलियों में चीखते हुए रोते हुए इमाम के घर की तरफ आ रहे हैं, हम दीवारों के साथ लग रहे थे, रोते रोते जब हम इमाम के घर में पहुंचे, अब वसल्लम कहता मैंने चराग को रोशन किया, मैंने इमाम रजा का बिस्तर देखा तो बिस्तर खाली बिस्तर देखे वसल्लम कहता मैं घबरा गया। जब मैंने कहा कि इमाम कहाँ गए तो मैंने जमीन पे देखा, रजा रेत पे ऐसे तड़प रहा। अब वसल्लम कहता मैंने यूं तड़पते हुए इमाम को बैठ के पाँव पकड़ा, मैंने कहा मौला तुम बताओ तुम्हें आने में देर क्यों हुई है? मौला देर इसलिए हो गई है कि बाहर तूफान बड़ा तेज है, बाहर आंधी बड़ी तेज है, इमाम मर्द हो के घबरा गए, वो